ओके स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था CMOS के फैब्रिकेशन प्रोसेस में। हम लोगों ने स्टेप्स देखा था, कौन कौन से स्टेप्स हैं उसमें। पी वेल प्रोसेस देखा, एन वेल प्रोसेस देखा, ट्विन ट्यूब प्रोसेस देखा। और आज की क्लास में हम लोग मॉसफेट पढ़ेंगे, मॉस ट्रांजिस्टर। कि मॉस ट्रांजिस्टर क्या है। मॉस ट्रांजिस्टर जिसको कहते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो मॉसफेट क्या होता है, इसमें देखो बताया गया है कि मॉसफेट इज एन electronics device most widely used in an IC, most widely used in an IC. It has 3 terminal, source, gate and drain. Construction of basic design of MOSFET is very simple. Construction of basic design of MOSFET is very simple. So in this what you have to take? You have to simply take a block of p-type substrate. Just take a block of p-type substrate and two heavily doped n-type region is inserted in that block. So you have to take just take a block of p-type substrate. Just take a block of p-type substrate. This block will be the base for the MOSFET. This block will be the base for MOSFET. This block will be the base for the MOSFET. We also called it as substrate. We also called it as a substrate. And the entire MOSFET we will fabricate on this base. And the entire MOSFET we will fabricate on this base. Now the two portion on the same side, on the same side of substrate are made highly doped. With n-type impurity. With n-type impurity. So
देखो MOSFET के बारे में बताया गया है कि व्हाट इज MOSFET. तो MOSFEट इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मोस्टली यूज्ड इन एन IC. It has three terminals: source, gate, drain. Construction of basic design of MOSFET is very simple. अभी हम लोग इसको बनाएंगे इसका कंस्ट्रक्शन. तो just take a block of, you have to take a block of p-type substrate and this block will be the base for the MOSFET. base होगा MOSFET का, इसी के ऊपर हम लोग MOSFET बनाएंगे. We also called it as a substrate and the entire MOSFET we will fabricate on this base. Now the two portion on the same side of the substrate are made highly doped with n-type impurities. Okay student. अब देखो आगे क्या है इसमें. अब देखो इसमें बताया गया है कि सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल are made out from these two n region, from these now the entire surface of substrate are coated with layer of SiO2. SiO2 will be have as an insulator. SiO2 will be have as a insulator. On this layer of SiO2, a thin metallic plate is placed. A thin metallic plate is placed. This metallic plate will act as a gate contact. To the substrate. The gate terminal are made brought out from this metallic plate. The gate contact are insulated with substrate but
drain and source contact are but drain and source contact are directly contacted with two respective n-type region. So this was a constructional figure of a MOSFET. तो दिस वाज अ कंस्ट्रक्शनल फिगर ऑफ अ MOSFET. इसमें देखिए बताया गया है कि सोर्स और जो ड्रेन टर्मिनल है आर मेड आउट फ्रॉम दिस टू एन रीजन. तो जो आप पी टाइप का सबस्ट्रेट लोगे और उसमें दो हैवीली डोप्ड एन टाइप रीजन लोगे, तो जो दो हैवीली डोप्ड एन टाइप रीजन लोगे वहां से सोर्स और ड्रेन का टर्मिनल हम निकालेंगे, वहां से आउट होगा, आर मेड आउट. सोर्स एंड ड्रेन टर्मिनल आर मेड आउट फ्रॉम दीज टू एन रीजन. नाउ द एंटायर सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेट आर कोटेड विद अ लेयर ऑफ SiO2. उसके बाद उसके ऊपर एक SiO2 का लेयर डिपॉजिट करते हैं. दिस SiO2 will we have as a insulator, and on this layer of SiO2 a thin metallic plate is placed. उसके ऊपर एक मेटेलिक प्लेट प्लेस्ड करते हैं. दिस मेटेलिक प्लेट विल एक्ट एज अ गेट कॉन्टैक्ट टू द सबस्ट्रेट. द गेट टर्मिनल आर मेड ब्रॉट आउट फ्रॉम दिस मेटेलिक प्लेट. द गेट कॉन्टैक्ट आर इंसुलेटेड विद द सबस्ट्रेट. मतलब ये हो गया जो सबस्ट्रेट होगा हमारा, जो पी टाइप सबस्ट्रेट होगा उससे जो गेट का कॉन्टैक्ट नहीं होगा, इंसुलेटेड होगा. बट द ड्रेन एंड सोर्स कॉन्टैक्ट आर डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विद द रिस्पेक्टिव एन टाइप रीजन. तो इसको फिगर हम लोग इसको बाद में इसको बनाएंगे. अभी थोड़ा सा इसका थियरी पोर्शन देख लेते हैं क्या क्या है. तो इसको आप लोग एक बार देख लो. अब इसमें देखो द एन टाइप रीजन, the n type region connected with positive terminal of the source, the n type region connected with positive terminal of source called as drain, और जो दूसरा एन टाइप रीजन होगा द एन टाइप रीजन टू हाईली डोप्ड होता है. तो दूसरा वाला जो होगा दूसरा द सेकंड वन द एन टाइप रीजन connected with negative terminal of source. Source means what? Battery. Negative terminal of source is called as source. उसको सोर्स कहते हैं. तो देखो इसमें बताया गया है जो एन टाइप रीजन होगा जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा उसको ड्रेन कहेंगे, बिकॉज वी हैव टू हाईली डोप्ड एन टाइप रीजन. तो जो एन टाइप रीजन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा उसको हम लोग कहेंगे ड्रेन. और जो दूसरा एन टाइप रीजन होगा जो कनेक्ट होगा निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एज सोर्स. अब इसमें देखो बताया गया एज शून एज सोर्स एंड ड्रेन as soon as source and drain connected with DC voltage source
there will be two p-n junction form. There will be two p-n junction. There will be two p-n junction form. ये भी हम लोग फिगर इसका बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. One is in between. One is in between n-type drain. One is in between n-type drain and p-type substrate. और दूसरा होगा n-type source and p-type substrate. And other is in between p-type base and n-type source. तो इसमें देखो बताया गया है कि एज ड्रेन, क्योंकि ड्रेन को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हैं. एज ड्रेन इज कनेक्टेड with positive terminal of source, the drain is in higher voltage with base. The drain is in higher voltage with base. ठीक है. तो इसमें देखो 2 p-n जंक्शन डायोड फॉर्म होता है. जो एन टाइप रीजन कनेक्ट करोगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एज ड्रेन, और दूसरा एन टाइप रीजन कनेक्ट होगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड एज सोर्स. तो जैसे ही सोर्स और ड्रेन को कनेक्ट करोगे डीसी वोल्टेज से, तो देयर विल बी 2 p-n जंक्शन फॉर्म. तो पहला जो होगा वन इज बिटवीन एन टाइप ड्रेन एंड पी टाइप सबस्ट्रेट, और दूसरा होगा एन टाइप सोर्स एंड पी टाइप सबस्ट्रेट. और चूंकि एज ड्रेन इज कनेक्टेड विद पॉजिटिव टर्मिनल, जैसे बताया ड्रेन पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो ड्रेन इज इन हायर वोल्टेज विथ बेस. बेस मतलब पी टाइप. तो ड्रेन अगर हायर वोल्टेज है बेस से, तो किस तरह की बायसिंग होगी? रिवर्स बायसिंग. तो इसको देखो आगे. कहाँ तक पढ़ेंगे? दूसरा में देखो लिखा एज इन बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, एज इन बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स there will be one reverse bias and one forward bias जंक्शन. तो एक फॉरवर्ड बायस जंक्शन बनेगा और एक रिवर्स बायस जंक्शन बनेगा. दो पीएन जंक्शन डायोड बनेंगे, और एक फॉरवर्ड बायस में होगा और रिवर्स बायस में होगा. देयर विल बी नो significant current flow from drain to source.
but a tiny current continue to flow due to minority carrier. Small current flow करेगा due to the minority carrier. We can say that virtually there is no continuous path or channel between drain and source. Now let us see what happened when suitable voltage positive voltage is applied to gate terminal of the device. अब देखो इसमें बताया गया है कि 2 p-n जंक्शन डायोड जब से आप ड्रेन और सोर्स टर्मिनल को आप बैटरी से जोड़ोगे, VDS आप अप्लाई करोगे, तो दो डायोड एग्जिस्ट करता है. There will be as in between drain and source there will be one reverse bias and one forward bias. अब कौन फॉरवर्ड बायस होगा तो आपको मालूम है जब P वाला पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा और N वाले नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा बैटरी के, तो फॉरवर्ड बायस होगा. और सिमिलरली व्हेन P will be connected with the negative terminal of the battery and N is connected with the positive terminal of the battery, then it will be in reverse bias. तो चूंकि दो डायोड बना है, there will be no significant current flow from drain to source but a tiny current flow due to the minority carrier. So we can say that virtually there is no continuous path or channel between drain and source. Now let us see what happens when suitable voltage, positive voltage is applied to the gate terminal. अब देखते हैं गेट वाले टर्मिनल पे जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है. दिस पॉजिटिव गेट वोल्टेज, अब देखिएगा, दिस पॉजिटिव गेट वोल्टेज will attract negative free electron which is minority carrier in p-type base. Will be accumulated toward the contact plate, toward the
towards the contact plate and form a channel of negative charge carrier. Even inside p-type semiconductor, even inside p-type semiconductor, this channel due to higher concentration of free electron, this channel due to higher concentration of free electron will behave as an n-type semiconductor. Although entire base is doped with p-type semiconductor. तो ये उसका कंस्ट्रक्शनल हो गया कि जैसे ही आप पॉजिटिव गेट वोल्टेज अप्लाई करोगे विल अट्रैक्ट नेगेटिव फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि गेट पे पॉजिटिव वोल्टेज आप अप्लाई करोगे तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसको अट्रैक्ट करेगा, और विच इज माइनॉरिटी कैरियर इन पी टाइप बेस। जो आप पी टाइप सबस्ट्रेट लिए हो तो पी टाइप में आप लोग को मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर में होते हैं, तो इसको अट्रैक्ट करेगा और विल बी एक्यूमुलेटेड टुवर्ड द कॉन्टैक्ट प्लेट की तरफ एक्यूमुलेट होगा एंड फॉर्म अ चैनल ऑफ नेगेटिव चार्ज कैरियर, और चैनल बनाएगा नेगेटिव चार्ज कैरियर का इवन इनसाइड अ पी टाइप सेमीकंडक्टर. दिस चैनल ड्यू टू हायर concentration of free electron will behave as an n-type semiconductor although entire base is doped with p-type semiconductor. अब कल की क्लास में इसका हम लोग वर्किंग देखेंगे, तो आज की क्लास के लिए इतना ही. ओके, थैंक यू.